Hello students, welcome you all on Vidya Bharati classes YouTube channel. Today we are going to study lesson number 2, A Letter to God. A Letter to God, written by Gregorio Lopez Fuentes. It means G.L. Fuentes. Students, if I say about this lesson, the lesson is very interesting. The lesson is very interesting. I am sure, I would like to say you, I am sure, if you read the story carefully, you will feel very happiness and surprise. Here, in this lesson, the main character Lencho is a hard-working farmer. He has some children, youngers, elders, and a wife also. He works hard in his fields day and night, but he become disappointed. If I talk about the lesson, about the theme of the lesson, Lencho was a hard-working farmer. He was a devotee of God and had a firm faith in God. One year, his harvest was destroyed totally. So he wrote a letter to God asking for money to carry on his life. The postmaster saw the letter addressed to God and wondered, surprised, who can be someone? A person who writes a letter to God. Yet he helped Lencho by sending him some money. He received a letter in the post office, but he was angry to find the money short. He wrote another letter to God and asked him to send the rest of money directly to him. Because according to Lencho, the post employees were a bunch of crooks. You know, students, bunch, group, crooks, dishonest people. Dishonest people, बेईमान व्यक्ति. According to Lencho, the post employees were a bunch of crooks. कि पोस्ट ऑफिस जो कर्मचारी थे वे सभी एक धोखेबाजों का एक समूह था. Here students, to know the themes of this lesson, let's start reading. Here, the house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. The house, वह घर, एकमात्र, in the entire valley, जो पूरी entire, you know बच्चों, entire total, संपूर्ण वैली में, वैली घाटी, पूरी घाटी में एकमात्र घर set on बसा हुआ था, the crest चोटी पर of a low hill, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर जो घर बसा हुआ था पूरी घाटी में, वो एकमात्र अकेला घर था. From this height one could see the river and the fields of ripe corn along with dotted with the flowers that always promised a good harvest. और जहां ये मकान बसा हुआ था उस हाइट से कोई भी व्यक्ति नदियों को और मकई के खेतों भरे हुए, मकई की फसल से भरे हुए खेतों को फूलों के साथ देख सकता था, और जो हर वर्ष की तरह, हमेशा की तरह एक अच्छी फसल के का वचन देती थी, वादा करती थी. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Downpour, you know students, heavy rain, मूसलाधार बारिश. shower, हल्की बारिश, बौछार. Here students, the only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. धरती को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, पानी की. needed was the downpour, एक
मूसलाधार बारिश या फिर कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु knew his fields intimately had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Intimately, closely, बारीकी से, नजदीक से। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह के समय लेंचो ने और कुछ नहीं सोचा बजाय उत्तर और पूर्व के ओर देखने के बजाय, क्योंकि उसकी धरती को, उसकी खेतों को पानी की आवश्यकता थी, मूसलाधार बारिश की या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। वास्तव में अब हम कुछ ना कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, लेंचो ने कहा। द वोमेन, और महिला ने उसकी वाइफ ने कहा, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, हम बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं यदि ईश्वर चाहते हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम बिल्कुल पानी को प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो बड़े बच्चे थे लेंचो के, वो उनके साथ खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे थे वे घर के आसपास ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all come for dinner. जब तक उनकी मम्मी उन्हें डिनर, रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाती थी, तब तक वे बड़े बच्चे अपने पिताजी के साथ खेतों में काम किया करते थे और छोटे घर के पास में ही खेलते रहते थे। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. भोजन का समय था, उसी समय लेंचो ने जिस समय भविष्यवाणी की, उस समय भोजन का समय था और उसी समय बड़ी बड़ी बूंदे, वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। बिगिन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र से जो बड़े बड़े विशालकाय बादल, पर्वतों की तरह बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा बहुत ही मधुर और स्वच्छ थी, फ्रेश, स्वच्छ, तरोताजा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लेंचो किसी और काम के लिए नहीं, केवल उस वर्षा का आनंद, उसको वर्षा को आभास करने के लिए अपने घर से बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह बाहर से वापस लौटा तो उसने कहा, क्या कहा बच्चों, ध्यान से सुने। These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. कि ये जो वर्षा की बूंदें ऊपर से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें मात्र नहीं हैं, ये तो falling, they are new coins, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10-cent pieces, जो बड़ी बूंदें हैं वे 10 cents pieces की हैं, और जो छोटी है वे 5 cents pieces की हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower dipped in a curtain of rain. With a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव से, he regarded, वह देखता रहा, टकटकी लगाए देखता रहा, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, अपनी पकी मकई के पके हुए खेत को, विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो इस समय एक बारिश के पानी से पूर्ण से ढक चुकी थी। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर द क्रॉप्स ऑफ लेंचो बिफोर रेन, healthy crops, and after rain here is the destroyed crop after rain. Here is water dropped, the totally cropped, it means destroyed. Lenchos, I would like to say you about something about Lenchos conditions in these pictures. At the top of a low hill, Lencho's house is situated at the top of a low hill here, and the Lencho's house here. The younger one is children playing near the house,
yes, you can see here playing a child near the house, and here crops, lenchos crop before rain, the healthy crops, and after rain heavy rain with hailstones, ओलों की बारिश के साथ, the total harvest destroyed. So students, here जैसे ही लेंचो का पूरा खेत पानी से ढक गया तो उसकी फसल बर्बाद होनी शुरू हो गई. और इसके बाद what will happen after that, let us know more about the lesson about this interesting story. Yes, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. अचानक एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई और उसी के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने शुरू हो गए. These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में एक चांदी के नए सिक्कों की तरह प्रतीत होते थे. Resemble, similar to चांदी की सिक्कों की तरह प्रतीत होते थे. The boys exposing themselves to the rain, और बच्चे लड़के वर्षा के पानी में अपने आप को एंजॉय कर रहे थे. themselves ran out to collect the frozen pearls, और वे बच्चे frozen pearls, you know students, frozen pearls, here frozen pearls, hailstones, frozen pearls you can see, and another word frozen mass of ice. frozen pearls, ओले, बड़े बड़े ओले. और लड़के जो है ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर बारिश में दौड़ पड़े. यस, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ. अब वास्तव में बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. लेंचो ने कहा, आदमी ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली. मेरी इच्छा है कि ये जल्दी से शीघ्र व्यतीत हो जाए, बीत जाए, खत्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं रुका, नहीं जल्दी से खत्म नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज if covered with salt. It did not pass quickly, यह शीघ्रता से नहीं व्यतीत हुआ. फॉर एन आवर, 1 घंटे तक लगातार ओले वाली वर्षा पड़ती रही. पूरे मकान पर, गार्डन बगीचे पर, हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र पर, द कॉर्नफील्ड और मकई के खेतों में हर जगह पूरी बारिश 1 घंटे तक, ओले वाली बारिश 1 घंटे तक पड़ती रही. ऑन द होल वैली, पूरी संपूर्ण घाटी में. हॉल, यू नो स्टूडेंट्स, हॉल, हियर इज हॉल. संपूर्ण घाटी में पूरी 1 घंटे तक ओले वाली वर्षा पड़ती रही. Yes, as if covered with salt, और ऐसे लगा, खेत ऐसे लगने लगे जैसे कि यह नमक से ढक दी गई हो. Not a leaf remained on the trees, एकमात्र पत्ता भी पेड़ों पर नहीं बचा. एक पत्ता भी पेड़ों पर नहीं बचा. इस प्रकार की मूसलाधार बारिश ओलों के साथ हुई. इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स? लेट्स नो मोर. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और इस प्रकार लेंचो जो है बहुत हताश हो गया, दुख से भर गया. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, अर्थात लेंचो को बहुत दुख हुआ. when the storm had passed, जब ये तूफान गुजरा, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब यह तूफान गुजरा तो वह अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा. अपने बेटों से क्या कहा स्टूडेंट्स? लेट्स नो. A plague of locusts, you know students, locusts, insects, a kind of insects. locuts में टिड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी टिड्डियाँ जो खेतों को जो नुकसान पहुँचाती हैं, और इनको हम इंसेक्ट्स भी कह सकते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे जो खेती के लिए हानिकारक होते हैं. Yes, a plague of locusts would have left more than this. इस ओले वाली वर्षा से तो कहीं अधिक अच्छा होता कि टिड्डियाँ ही कुछ न कुछ खेत में छोड़ देती. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल
ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष तो हमारे पास कोई भी मक्का अर्थात कोई भी फसल नहीं होगी। और उससे क्या होगा जब हमारे पास कोई, क्योंकि स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं जब एक किसान होता है तो उसकी कमाई का जरिया उसकी फसल ही होती है, और जब उसकी पूरी फसल टोटली फसल बर्बाद हो गई तो फिर क्या होने वाला है, लेट्स नो। नथिंग लेफ्ट, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one, और वह रात बहुत दुख भरी थी। All our work for nothing, और हमारा सारा किया हुआ कार्य बिल्कुल बेकार हो गया, इसका कोई हमें लाभ नहीं मिलने वाला है। There is no one who can help us, और कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमारी सहायता कर सकता है। We will all go hungry this year, इस वर्ष हम सभी भूखे ही रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary houses in the middle of the valley, लेकिन जो भी इस घाटी, जितने भी व्यक्ति इस घाटी के बिल्कुल बीचों बीच में रहते थे, उनके हृदय में एक बात थी, एक इच्छा, एक आशा थी। क्या आशा थी? There was a single hope, वो एकमात्र सिंगल आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, ईश्वर की मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट, इतने दुखी मत होइए। इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, चाहे यद्यपि पूरा का पूरा आपका नुकसान हो गया हो। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है, कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। That is why they say, और इसीलिए लोग कहते भी हैं, what they say, जो लोग कहते हैं, no one dies of hunger, कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। Although the night, पूरी रात भर लेंचो thought only of his one hope, पूरी रात भर लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में वह सोचता रहा, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी स्टूडेंट्स? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes he had been instructed see everything, और जो जैसा कि he has been instructed, जैसा कि लेंचो को बताया गया था अर्थात उसको बताया गया था कि see everything even that is deep in one's conscience, कि किसी भी व्यक्ति की अगर अंतःकरण में कोई भी बात हो तो ईश्वर की आंखें, भगवान की आंखें उसको बहुत आसानी से देख लेती है, जैसा कि लेंचो को बताया गया था। यस, लेंचो was an ox, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, और लेंचो एक व्यक्ति होते हुए भी एक बैल की भांति था, अर्थात अपने खेतों में एक बैल की तरह कार्य में लगा रहता था, कार्य करता रहता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम किया करता था इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टिल ही ने हाउ टू राइट, लेकिन इसी के साथ साथ, खेतों में काम करने के साथ साथ वह लिखना भी जानता था, वह यह भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक स्टूडेंट्स, you can mention this word also, at daybreak morning, it will beneficial for in matching, you in board exams when you matching words, at daybreak morning. So these all words will be very helpful for you for board exams. 4 numbers secure, these words secures your 4 numbers, 4 marks. Okay students, yes, next. द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, आने वाले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगिन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले सुबह संडे रविवार के दिन उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, और जिसको वह स्वयं कस्बे में ले गया, टाउन में ले गया, और उसको उसने मेल में डाल दिया, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और इस पत्र पर भगवान के नाम एक पत्र के अलावा कुछ और नहीं था। देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, लेस देन, बिल्कुल भी कुछ लेस देन ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के पत्र के अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, उसने लिखा, गॉड, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड वंस अगेन, और इसीलिए मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है।
100 पैसों की आवश्यकता है। कितने पैसों की आवश्यकता है स्टूडेंट? 100 पैसों की। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। 100 pesos, yes, and to leave until the crops comes, और जब तक की नई फसल उगकर आए, जब तक अपनी जीवन दिनचर्या चलाने के लिए। बिकॉज द hailstorm rains had destroyed my crop totally, क्योंकि ओले वाली वर्षा ने मेरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी है। यस, he wrote, उसने लिखा to God on the envelope, you know students, envelope, wrapper, लिफाफा। yes here envelope wrapper means लिफाफा। एनवलप उसने लिखा गॉड को, ईश्वर को। जब उसने पत्र लिखा तो पत्र के ऊपर उसने टू गॉड लिखा कि ये पत्र किसको जाना है। टू गॉड मीन्स गॉड को पत्र जाना, ईश्वर के लिए पत्र, ईश्वर को पत्र जाना। बट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, एंड उसने लिफाफे के अंदर पत्र को रखा। स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन, और फिर भी उसी पत्र लिखने के बाद, उसको पत्र लिफाफे में रखने के बाद भी वो उसके बावजूद भी परेशानी में रहा और अपने कस्बे को वापस चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने इस पर एक टिकट लगाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी ने, जो डाकखाने के कर्मचारी थे उनमें से एक कर्मचारी ने, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो अपने आप में एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो डाकखाने में काम किया करता था, सहायता किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वह हंसते हुए, अपने खुल के हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने उनको भगवान के नाम का एक पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, अपने जीवन के कैरियर में उसने कभी भी इस तरह के लेटर कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट अमीएबल, यस स्टूडेंट्स, अमीएबल फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, जिसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है, मिलनसार होता है। यस, फैट, जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा, अमीएबल फेलो, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इंटीमेटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अंत में वह तुरंत सीरियस, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंडेड, उसने अपने उस पत्र को अपने डेस्क में रखा और कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी इतना ही विश्वास होता जितना विश्वास इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति का है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, जिसका भगवान के साथ पत्राचार का व्यवहार है, पत्रों को लिखना का। कॉरेस्पोंडेंस स्टूडेंट्स, एक्सचेंज लेटर्स, यू कैन मेंशन ऑल्सो कॉरेस्पोंडेंस, एक्सचेंज लेटर्स, पत्रों का आदान प्रदान करना, कॉरेस्पोंडेंस। यस, सो इन ऑर्डर टू shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. ईश्वर में, लेखक का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए, इसीलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, की पत्र का उत्तर दिया जाए। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उसने इसको खोला तो उसने इसमें देखा कि यह स्पष्ट है कि उसमें इसका उत्तर देने के बजाय इसमें उत्तर
मोर देन गुडविल कि 6000 करने के लिए इंक और पेपर को के अलावा इसमें उसके अलावा और भी कुछ देने की आवश्यकता है, स्पष्ट है। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, रेजुलेशन डिटर्मिनेशन, बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशंस। He asked for money from his employees, उसने कहा for money, धन के लिए, from his employees, अपने कर्मचारियों से। He himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और उसने पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का एक भाग और उसके कर्मचारियों ने भी इस कर्तव्य उदारता भरे कार्य के लिए अपनी सैलरी का कुछ न कुछ हिस्सा लेंचो की मदद करने के लिए दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पीसोज, और उस अकेले के लिए 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन इसीलिए उसने जितनी मनी पैसे लेंचो ने मांगे थे उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा देने में उनको समर्थ हो पाया। Yes. Yes, students. He put the money in an envelope. उसने उस धन को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता उस पर लिख दिया। एंड विद देम ए लेटर containing only a single word as a signature God, और उस पत्र पर केवल एक शब्द लिखा था कि गॉड से, ईश्वर से ये पत्र आया है, सिग्नेचर एज गॉड। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और अगले रविवार को लेंचो एक निर्धारित समय से कुछ समय पहले ही वहाँ पर आ गया कि पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया है या नहीं आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और यह अपने आप में पोस्ट डाकिया ही था जिससे उसने पूछा। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको एक पत्र थमा दिया। वेल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो डाकखाने का मालिक था, पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, वह उस अनुभव को संतुष्टि के, कंटेंट मीन्स स्टूडेंट्स, कंटेंट आई थिंक आई डिडंट रीड, आई कुड राइट हियर, कंटेंट मीन्स संतुष्टि भरा भाव, कंटेंट सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, कंटेंट, तो अनुभव कर रहा, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने ये अच्छा कार्य किया। लुक्ड एंड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और जो अपने कार्यालय के दरवाजे से इस सब चीज़ों को देख रहा था। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच। द रिमेनिंग पार्ट्स विल बी टॉट टुमारो। इफ यू लाइक, आई एम श्योर you are eager to read this chapter, the remaining part of this chapter, because I think the chapter is very interesting. So the remaining part I will taught you next time. Thank you so very much. Thank you.